students, welcome back to Eduate Classrooms, the official YouTube channel of Eduate, the first edtech platform from Northeast. I'm so sorry to keep you guys waiting for so long, right? I'm sure many of you guys are curious and are eagerly waiting to know who your new physics edu guru will be. So this is your session. In this session, today basically right now, you will be knowing, I will be introducing you to your new physics edu guru. But before that, I'd like to tell you that all the new students who have just joined into our YouTube channel, who have joined into the family, new classes, new sessions of live classes for class 9, 10 and 11 are starting soon. We'll be starting our classes from the first week of June. Registrations are going on. We've got limited seats. So call us at 94779 94779 to book your seats. Do not miss out on this opportunity to be a part of the best edtech platform of India. And I'm sure all of you guys are really wanting to know that who your physics edu guru is. So without wasting time, let me introduce you to your new physics edu guru. Your new physics edu guru is a master in teaching physics. He's an expert in understanding your problems about physics. He's an expert in making sure how you can understand physics in a much simpler way. He makes sure how you can relate to physics by taking examples which you will see in your day-to-day lives. If you don't believe me, then just wait for a little moment where our new physics edu guru, your new physics edu guru would be teaching you a very quick concept. Before that, let me quickly introduce you. Well, this is your new physics edu guru, Aman Kumar. Aman sir is an expert of physics, right? This is a little bit of information about him, and this is very less to justify what caliber he brings to you. Now, I would request Aman sir to quickly introduce himself in front of you, and I would also request him to take you through a very simple topic of physics so that you guys can totally relate to him, and you guys can also have a taste of what kind of physics he brings to the table. So Aman sir, all over to you. Hello viewers, welcome to Eduate, the first edtech platform of Northeast India. My name is Aman Kumar and I am your new physics faculty. एक बार आइंस्टाइन ने कहा, The true sign of knowledge is not intelligence but imagination. और फिजिक्स को भी हम लोग ऐसे ही इमेजिन करके पढ़ेंगे. तो in today's session, I am going to demonstrate how to understand the concepts of physics and how to apply that concepts to solve the numericals in an easy way and time-saving manner. So let's start with a small topic, motion. मोशन का एक छोटा सा टॉपिक लेता हूं, मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस. सो व्हाट इज मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस स्टूडेंट्स? सपोज अ बॉडी इज इन मोशन. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, कोई भी बॉडी अगर मोशन में होती है और उसको रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है. एम आई राइट? तो सपोज मान लेते हैं कि हम कार चला गए, तो उस कार को हमको रोकने के लिए क्या पड़ेगा? एक ब्रेक लगाना पड़ेगा. तो जैसे ही हम कार में ब्रेक लगाते हैं, आप यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हैं, क्लियर विजुअलाइजेशन से देख सकते हैं कि जैसे ही कार को ब्रेक लगाते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखिए एक रेड कलर की कार है जो किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है. तो जैसे उसमें ब्रेक लगा, वो क्या हुई? आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस वो जाकर रुकती है, नॉट सडनली रुक जाती है. तो आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेकिंग फोर्स और आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टू स्टॉप दैट मोशन, तो जितना डिस्टेंस कवर करती है, सपोज यहाँ पे जो डिस्टेंस आप देख पा गए, इस डिस्टेंस को ही बोलते हैं मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस. इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एस से. तो यहाँ पे एक फंडा मैं आप लोगों को और समझा देता हूं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का फंडा. तो अगर मान लीजिए ये जो कार है, ऊपर वाली येलो कलर की जो कार है, मान लीजिए ये जो कार है, अगर ये रेड कलर की कार को आप देख सकते हैं, ये सपोज यू वेलोसिटी से जा गई और आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये एस डिस्टेंस ट्रेवल करती है. तो सपोज कोई और कार है, जैसे आप देख पाएंगे येलो कार, सपोज या कुछ ज्यादा स्पीड से जा गई है या कुछ कम स्पीड से जा रहा है, हो सकता है सेम स्पीड से जा गई है. जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे थोड़ा फास्ट जा गई है, तो और ये आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक ये देख पाएंगे थोड़ा दूर जाकर रुक गई है. ये फील कर पा गए इस चीज को, इमेजिन कर पा गए आप सब लोग कि जब स्पीड ज्यादा है तो मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस भी थोड़ा ज्यादा है. तो यहाँ पे इस कार की स्पीड क्या थी? तो मैं अगर इसका स्पीड बोल दूं NU से डिनोट कर सकता हूं. इसकी स्पीड अगर U है तो इसकी स्पीड उससे ज्यादा है, तो मैं NU से लिख सकता हूं. तो अब ये कार जब ब्रेक लगाती है
NU से स्पीड से जाने के बाद, तब ये कार जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उस डिस्टेंस को मैं क्या बोल सकता हूं, इसको हम लोग शॉर्टकट वे में लिख सकते हैं, दैट इज n²s। क्लियर? ये n²s आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो आइए इस चीज को हम लोग थोड़ा ग्राफिकली समझ लेते हैं। कोई भी बॉडी अगर u वेलोसिटी से जा रही है तो कितने डिस्टेंस पे रुकेगी, s डिस्टेंस पे, और वही बॉडी अगर nu वेलोसिटी से जा गई, ये कम भी हो सकती है उससे, तो वो कितने डिस्टेंस पे रुकेगी, दैट इज n²s डिस्टेंस पे रुकेगी। बट यहां पे एक चीज स्टूडेंट्स नोट करने वाली बात है, when the same braking force is applied, तो ब्रेकिंग फोर्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, द पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, और यहां पे जो माइनस है देख पागे वो क्या है, रिटार्डेशन को डिनोट कर रहा है, मतलब उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन लगा है टू स्टॉप द मोशन ऑफ दैट बॉडी। क्लियर? तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करके देखते हैं, समझते हैं इससे हम लोग कैसे न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर पाते हैं विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। चलिए एक मैं छोटा सा क्वेश्चन लिया हूं, ऐसे ही क्वेश्चन अपने कंपटीशन के लेवल में आते हैं और वहां पे हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, a car moving with a velocity of 40 km per hour can be stopped by applying brakes for at least 2 मीटर। एक कार है जिसकी वेलोसिटी कितनी है, 40 km per hour, और आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक वो कार कितने डिस्टेंस पे रुकती है, 2 मीटर पे। नाउ इफ द सेम कार इज मूविंग विद a स्पीड ऑफ 80 km per hour, अब जो सेम कार है वो कितनी स्पीड से जा गई है, 80 km per hour की स्पीड से जा गई है। सो व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस? तो अब जो कार 80 किलोमीटर की स्पीड से अब वो जा रही है, तो अब उसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी होगी? सो स्टूडेंट्स कैन यू गेस दिस आंसर? क्या होगा? 1 2 3 4। सो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने का दो मेथड है। एक तो है कन्वेंशनल मेथड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आम जिंदगी। तो वो मेथड क्या है, थोड़ा लेंदी हो जाता है। हम लोग देखते हैं उस मेथड को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दैट एक फॉर्मूला लगाते हैं, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। क्लियर? इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि जो बॉडी है फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई है, बाद में जाकर वो तो स्टॉप हो गई है, 0 हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे v को 0 कर देते हैं और यहां से ये s जो डिस्टेंस है इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर? बट हम लोग इसको शॉर्टकट वे में कैसे सॉल्व करेंगे, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। लेट्स थिंक विदाउट इन। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं शॉर्टकट वे में। A car moving with a velocity of 40 km per hour, कार की स्पीड अभी कितनी है, मैं u से लिखता हूं, इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। नो इश्यूज। कैन बी स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक्स फॉर एटलीस्ट 2 मीटर। कितने डिस्टेंस पे कार रुकी आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, दैट इज s, 2 मीटर। कार आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स 2 मीटर पर जाकर रुकती है। So if the same car is moving with a speed of 80 km per hour, अगर वही सेम कार है अब वो 80 के स्पीड से जा रही है, तो अब कितना होता है, यहाँ पे मैंने आपको जस्ट बताया, इसके पहले जस्ट कॉन्सेप्ट बताया कि अगर वही कार किसी डिफरेंट वेलोसिटी से जाए तो हम उसको किससे डिनोट करेंगे, दैट इज NU। सो NU क्या होगा मेरा, 80 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, What is the minimum stopping distance? तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, that is minimum stopping distance of that car, MSD। ये महेंद्र सिंह धोनी वाला MSD नहीं है, ये मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला MSD है। तो यहां से हमने इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया, याद रहेगा, that is n²s। सो स्टूडेंट्स, इस मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस को हमको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, द वैल्यू ऑफ n। तो n का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो यहां से हम लोग n का वैल्यू वेरी सिंपली निकाल सकते हैं। हमको पता है NU कितना है, 80 है। द वैल्यू ऑफ NU इज 80 और U की वैल्यू क्या है मेरे पास, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो मैं यहां पे U की वैल्यू पुट कर देता हूं, दैट इज n इंटू 40 इज इक्वल टू 80। सो यहां से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 2। वेरी क्लियर। तो यहां पे मैं अगर n की वैल्यू को पुट कर दूं, दैट इज 2 का स्क्वायर इंटू, और s की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2 मीटर इंटू 2 मीटर। तो यहां पे मेरे पास क्या आ गया, दैट इज 4 इंटू 2 मीटर, दैट इज 8 मीटर। सो द राइट आंसर विल बी द वेरी फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन 1, दैट इज 8 मीटर।
तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि आप लोग इसको विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हमको पता है काय की वेलोसिटी कितनी है अभी 40, बढ़कर कितनी हो गई 80, तो हम इजीली समझ सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी जो है n की वैल्यू क्या होगी 2। कितना टाइम्स बढ़ी? 2 टाइम्स बढ़ी। या कितना टाइम घटी वो भी देख सकते हैं। तो n की वेलोसिटी कितनी 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 के साथ कितना मल्टीप्लाई होगा 2। तो यहां से हमको मिल गया 4 into 2 8। तो हम लोग इजीली कैलकुलेट करके विद इन 10 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर टिक कर सकते हैं। दैट विल बी 8 मीटर। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह के और भी कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए और न्यूमेरिकल्स को इजी सॉल्व करने के लिए बने रहिए मेरे साथ। आज ही ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, एडुएट की फैमिली के साथ जुड़ने के लिए हमें कॉल करें 9477994779। थैंक यू सो मच।